السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا سواگت ہے ایف ایس ایس پلیٹ فارم میں۔ میں خادم محمد تبریز عالم۔ ہمارا جس مشن کے تحت کام ہو رہا ہے وہ ہمارے قوم کے بچوں کے ایجوکیشن میں ناکامی کی ایک وجہ ہے، جن وجہوں کو ہم نے دن بدن ایک نئی نئی چیزوں کے ساتھ اور نئی نئی مثالوں کے ساتھ آپ کو بتلایا۔ پوری دنیا آج ایجوکیشن کے لیے مرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ایجوکیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ایک ایسی قوم دنیا میں بنی ہے جن کا سب سے پہلے علم کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا کہ علم تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن اس قوم نے اس چیز کو چھوڑ کر کے وہ دوسروں کو اپنانے کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ ہر کاموں میں الٹا ہو گیا ہے۔ الٹا اب آپ کہو گے بھیا وہ کیسے الٹا؟ وہی تو بتلا رہے ہیں، سنیے گا تب نہ سمجھیے گا۔ الٹا کیسے ہوا؟ ناچ گانوں کو دوسرے لوگوں نے ایجاد کیا اور اس کو اپنا لیے اس قوم کے لوگوں نے، جن کو یہ کہا گیا کہ علم سب سے پہلے تمہارے لیے ہے۔ اب جن کو علم کے لیے پہلے نہیں بتلایا گیا، انہوں نے ان چیز کو اٹھا کر کے ان کو دے دیا، تو اب ہو گیا الٹا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جن کو ناچ گانے اور سیکھنے اور سکھانے کا سب سے پہلے ایک راستہ ملا، اس راستے کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور یہ جس قوم کو کہا تھا کہ تم پہلے پڑھو اور اگر پڑھائی سے دور ہٹو گے تو ایسے مروڑ مروڑ کے کہیں پھینکے جاؤ گے کہ تمہاری نیست و نابود تک نہ بچے گی، تمہارا آنے والا کئی صدی تک تم کو کوئی اگر کھوجنے بھی لگ جائے تو نہیں مل سکتا۔ اب دیکھیے، جس قوم کے یہاں سب سے پہلے پڑھنے اور پڑھانے کا حکم ہوا، وہ قوم ناچ گانوں میں سب سے آگے ہو گیا۔ عرس مزار اور ان نچنیوں کو لا کر کے قوال کے نام سے نچوایا۔ اگر آپ اس تعلق سے بھی نہیں سنے ہیں تو جا کر کے ایف ایس ایس پلیٹ فارم میں جا کے دیکھ لیجئے کہ ان نچنیوں کو لا کر کے کس طرح سے پیسہ یہ قوم برباد کرتی ہے۔ اب آئیے آپ کو بتلاتے ہیں، جس قوم کے بچے ایجوکیشن میں سب سے پیچھے، ان کا حال کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آئیے نا، وہی تو بتلائیں گے، پورا سنیے تبھی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہمارا مقصد ان چیزوں کو آپ کا برین واش کرانا ہے، جن چیزوں کو لوگوں نے آپ میں ڈالنے کے لیے راتوں دن محنت کی ہے۔ محنت بھلے آپ تو نہ سمجھ ہے وہ چھوڑ دیے۔ اب آئیے پھر بتلاتے ہیں کیسے برباد ہو رہی ہے یہ قوم۔ اب دیکھیے، نئے نئے چیزوں میں جلسے کے نام سے، میں یہ بھی بتلا دوں جلسے کا مخالف نہیں ہوں، پھر سے سن لیجئے، نہیں تو کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے اور کمنٹ کرنے لگ جائے بھیا وہ تو بڑا اڑنے لگا، اب جلسے کے خلاف میں اترا۔ میں جلسے کے خلاف میں نہیں ہوں، میں ان دجالیوں کے خلاف میں ہوں جو دجال جلسے کے نام سے اپنے کوٹھیوں کو بھرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، پوری میری زندگی میں میں نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جو کبھی زندگی میں سوائے جمعہ، عید اور بقرعید کے کبھی مسجد اور مدرسے کی طرف جھانکا تک نہیں ہے، اور وہی شخص ہر سال جلسہ کروا رہا ہے۔ جلسہ، اب اس کی جلسے کی جو ہے خوبیاں سنیے۔ اس جلسے میں وہ کرتا کیا ہے؟ اس جلسے کے لیے چندہ صرف اپنے محلے گاؤں بھر میں نہیں بلکہ کئی ضلعوں میں ان کا چندہ ہوتا ہے، صرف ضلع ہی نہیں کئی اسٹیٹوں میں۔ اب دیکھیے، جلسہ ہو رہا ہے بہار کے کسی گاؤں میں تو وہ چلے جا رہا ہے ممبئی، دلی، مہاراشٹر، کہاں یعنی جہاں جہاں ان کے لوگ ہیں وہاں جا کر کے وہ چندہ کر رہے ہیں۔ ایک جلسے میں ٹوٹل آمدنی 8 سے 10 لاکھ روپے ہے،
चंदे के नाम से खर्च कितना किया? खर्च किया है सब मिला जुला करके, अगर खूब से खूब खींच टान के ला लिया और औलमाए कराम को अगर झोला भर भर के भी दिया है तो दिल से तो दिया नहीं, ऊपर के मन से झोले में भर दिया 10 का नोट। यानी टोटल खर्च अगर मिला जुला के देखा जाए तो 3 लाख रुपए है। अब 8 में से 3 को माइनस कर दीजिए, बचा 5 लाख। अब उसका पेट बाहर निकल करके अब उस सदरी में हाथ डाल करके ना चले तो उसे क्या कहते हैं आप? वो चले तो चले कैसे? जो कभी जिंदगी नमाज ना पढ़ा हो वो जलसा करवा रहा है। अब जलसे में हो क्या रहा है? जलसे में बुला भी उसी को रहा है जो कभी नमाज भी ना पढ़ता हो, उन्हीं खतीब को बुला रहा है जो कभी फजर की नमाज भी ना अदा किया हो, और उन्हीं नातख्वां को बुलाते हैं जो हमेशा मुंह में इतना वो गू गबर ठूस ले गुटके के नाम से, और वो स्टेजी पे बैठ करके इधर थूक रहा है, इधर थूक रहा है, इधर थूक रहा है, कभी पीछे थूक रहा है। यानी ऐसे ऐसे मौलाना को लाके वहां बैठाएंगे जो कभी नमाज भी ना पढ़ा हो। अब वो कौम को कह के जा रहा है तुम नमाज पढ़ो, पहले नमाज। पहली बात तो जलसों में नमाज के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं बचा है। जलसे में सिर्फ ये क्या कर रहा है, वो पार्टी क्या कर रही है, उसकी सरकार क्या जा रही है, वो किसकी सरकार बन रही है, इन चीजों को मिंबरे रसूल में इन लोगों ने, इन घुसपैठियों ने चालू कर दिया। जा रहा नबी की नात पढ़ने और मुंह में इतना गू गबर ठूस करके बैठा है, और ऐसे ऐसे निकाल रहा है बड़ा बड़ा आईफोन, कौन कौन फोन, और निकाल के ऐसे सेल्फी और फोटो खींच रहा है जैसे लग रहा है वो मिंबरे रसूल पे नहीं बैठा है, वो बैठा है किसी पार्क में, ऐसी जगह बैठा है किसी रेस्टोरेंट में, ऐसे लगता है। यानी मिंबरे रसूल सिर्फ नाम रह गया, काम उसमें ऐसे ऐसे अंजाम देंगे जिससे कौम को सिवाय नुकसान के कोई एक फायदा नहीं मिलता है। फिर से याद रखिएगा, मैं जलसे के मुखालिफ में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ इतनी सी बात तो जरूर कह रहा हूं कि उन जलसे करवाने वाले और इस जलसे में उन गू और गोबर ठूस करके आने वाले, और जो कभी नमाज ना पढ़ा हो वो कुर्सियों में बैठ करके ऐसे ऐसे हाँक के जाएगा, गला फाड़ के ऐसे जाएगा जैसे लग रहा है यहां से नस फटने वाला हो। ऐसे ऐसे लोग आके मिंबर पे बैठेंगे और हमारी कौम उसी में खर्च करने लगेंगे। कोई 500 कोई 5000 दे रहा है, और इन फकीर की औलादों के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं आएगा कहां से, जिस कौम के यहाँ सिर्फ मजार उर्स और इस ढोंगी जलसों में इन चीजों में खर्चात करने के पीछे लगे हों। ये आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जो खुद जलसा करवा रहा है भैया वो तो खुद नमाज नहीं पढ़ता, जब वो खुद उस पर अमल नहीं कर रहा तो जिस अमल करवाने के नियत से थोड़ू करा रहा है वो जलसा। कभी कभी इस माइंड को भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद आप सोचिए, जो खुद जलसा करवा रहा है वो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो क्या उनकी माइंड में, उनकी सोच में ये बात रहेगी कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं और जलसा करवा करके हम सारे लोगों को परहेजगार मुत्तकी बना दें? अरे पहले खुद गोबर से पैर निकालोगे तब ना दूसरों को तुम कहोगे जो वो गोबर है। उसको खुद ना दिख रहा है कि वहां गू गोबर रखा हुआ है, खुद जाके पैर फंसाए फंसाए ऐसे खड़े है, ऐसे दलदल बनाए हुआ है इस गोबर के अंदर पैर डाल करके कि उससे अब निकलने के लिए दूसरों को तैयार कर रहा है और बुला बुला के बतला रहा है कि इस पे पैर ना रखो। अरे पहले तुम खुद तो पैर निकालो तब ना तुम दूसरों के कहोगे। हम खुद ही नमाज ना पढ़े और तुमको बुलाएं और मजमा लगाएं, महफिल सजाएं, भैया सब नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। यानी ये हमारी नीयत ऐसी नहीं हो सकती कि हम आपको सिखाने के लिए आए हैं। सिखाएंगे उस वक्त
यानी मैं मिसाल दे रहा हूं भैया, अब फिर कोई मेरे ऊपर ना फेंक दे। हालांकि मैं भी उतना धुले हुए इंसान नहीं हूं, लेकिन हाँ उन लोगों से तो अच्छा ही हूं, इतना जान लीजिए, जो कमाने के लिए साल साल भर बैठ करके ऐसे पान थूक के इधर थूक रहा है, इधर थूक रहा है, और मार्केटों में ऐसे घूमेगा, लग रहा है उसके बाप ने इस पूरे मार्केट को बनाया है, ऐसे पान खा के मुंह पिचका पिचका के थूक रहा है। ये मरदूत को कौन बतलाए? पहले तुम खुद अमल कर लो, पहले तुम खुद नमाजी बनो, परहेजगार बनो, उसके बाद जलसों में तुम ये करो। अब जलसे में ये सिर्फ कमाने का एक जरिया बना लिया है, जलसा बहुत कम है। हाँ, जलसा देखना हो तो आप चले जाइए बरेली के सरजमीन पर, जलसा देखना हो मुबारकपुर के जमीन पे चले जाइए, जलसा देखना हो किसी भी मदारिस इस्लामिया में जाइए, वहां जलसे के नाम से कुछ है। और वहां कौन लोग उस जलसे में, वही लोग आएंगे, ये भी याद रखिएगा, जो चंदा करा के जलसा करा रहा है वहां पे वही गुमूत खाने वाले लोग आके बैठेंगे, बेनमाजी आकर के बैठेंगे। लेकिन जहां चंदे के बगैर जलसा हो रहा हो, जहां खुद ब खुद औलमा कराम चल के आ रहा हो, वहीं पे जलसा रियल में है। यानी उन घुसपैठियों को जो मुंह में गूगबर थूक घुसा करके उस मिंबरे रसूल पे बैठता है, वो ऐसे मिंबर पे कभी नहीं जाएगा। उस मिंबर पे वही लोग जाएंगे जो इन चीजों से दूर है, जो खुरफातों से दूर है, वो जाएंगे। समझने की जरूरत है, इन चीजों में फजूल खर्चात न कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको पढ़ाइए, उनको तालीम दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको जलसे में जाकर के बैठ करके उन गुटखा खोर और गू और गोबर ठूसने वालों को ना देखना पड़े। खुद अपने औलाद को घर में बैठ करके देख करके सीख लीजिए, ये जरूरत है कौम में। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए सोचिए। इन खुरफात में इन घुसपैठियों को देकर के, इन हराम खोरों को पैसा देकर के चंदे के नाम से कोई फायदा नहीं है। चंदा देना हो तो मदारिस इस्लामिया में दीजिए, और वहां भी जांच कर लीजिए कि मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि इस पे भी हमारी रिसर्च हो रही है, इस पे भी बात करेंगे। हमने बहुत ढूंढ निकाला है ऐसे ऐसे इदारे को जहां पे सिर्फ नाम का इदारा है, काम का कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इस पेज को, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और उन घुसपैठियों को तो जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं जो घुसपैठियां खुद नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के लिए दावत देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सारी बात समझ में आई होगी। आप देख रहे थे FSS प्लेटफॉर्म में खादिम मोहम्मद तबरेज आलम। अस्सलाम वालेकुम।